Recording. Good evening, all of you. We start our today's Golden Chacha program. It is started on the back mind कि नए नए जो स्पीकर्स है जो बोलना चाहते अपने आप को प्रमोट करना चाहते जिन्हें नए नए जगह पे चांस नहीं मिलता उनको एक नया चांस देना तो इसी व्यू पे अपने आगे बढ़ रहे हैं ये गुड इनिशिएटिव बाय एआईआरसी विष्णु तुलसियान जी आवर चेयरमैन एंड I request Rohit Kejriwal ji for today's special address. Thank you, Chimbu. Good evening, all of you. Respected speaker CA Pawan Agarwal ji, coordinator CA Champu Agarwal, esteemed member of EARC and all participants joining us today. It is my pleasure to welcome you all in this Golden Charcha platform dedicated to continuous learning and professional engagement. Today's topic is our Code of Ethics and QRB, goes to the very heart of our profession. As chartered accountant, the trust placed in us by society, regulator and stakeholders is immense. The trust is not built up on technical expertise alone, but on the ethical foundation that guides our judgment, our behavior, and the quality of our work. मतलब हम लोग का ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ इथिक्स और क्यूआरबी से अपने क्वालिटी पे भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं ऐसा नहीं कि ऑडिट कर दिए और हो गया, अपने को क्वालिटी भी देखना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, जो अपना एज पर प्रोफेशनल इथिक्स सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वी हैव अ इम्पोर्टेंस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स. द कोड ऑफ इथिक्स इज नॉट merely a set of rules. It is a mindset, a discipline, and a commitment to uphold the highest standard of integrity, objectivity, professional competence, and professional behavior also. It's an increasingly complex business environment. Dilemma are inevitable. The code of ethics help us navigate these situations with clarity and confidence, ensuring that our actions remain aligned with the public interest. क्यूआरबी के भी बहुत सारे रोल्स हैं जो अपने क्वालिटी रिव्यू बोर्ड्स हैं. तो द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंश्योर दैट आवर ऑडिट प्रोसेस रिफ्लेक्ट यूनिफॉर्मिटी, रिगर एंड ट्रांसपेरेंसी. इट प्रमोट्स a culture where quality is not a goal but a continuous practice, where judgment is strengthened by documented procedures, and where the credibility of our profession is reinforced through independent reviews. Ethics plus quality equal to professional excellence. Okay. Together, the code of ethics and QRB form the backbone of professional excellence. Now I request to CA Pawan Agarwal ji to give the detailed deliberation on code of ethics and role of QRB, which a chartered accountant have to be maintained to do a good practice. Thank you. I look forward to an enriching discussion ahead. Thank you, Chimpu, for giving me an opportunity to speak here as a special address on the topic of Code of Ethics and QRB. Thank you, all of you. Thank you, Rohit ji. Before going to start today's topic, I brief profile of Pawan Agarwal ji. CA Pawan Agarwal ji, a national scholar is a fellow member of ICSA and has been practicing since more than 3 decades. He completed his BCom honors and LLB from Calcutta University. He is currently associated with the Madanlal and Associate, Madanlal and Associate, Kolkata. Uh, Established in 1970 by his father, CA Madanlal Agrawal, who was the revered and well-known chartered accountant of his time, and his son is also chartered accountant. They are practicing three steps: grandfather, father, and son. He visit expertise is widely recognized with the profession. Below are some of his instance. Co-author contributor to following recent key publication of Direct Taxes Committee of ICI, is currently the member of Ethics Standard Board of ICI. He is currently member of 40 member group of ICI giving suggestion on new income tax bill. He is currently faculty with the paper review board to train the peer reviewer.
is empaneled technical reviewer with the quality review board, peer review with the peer review board of ICI, technical reviewer with the taxation audit quality, deputy convener of taxation audit quality review group of Kolkata, and so on. He is the an important role playing EIRC ICI during the year. I request Pawan Agarwalji to start today's topic from now. Hand over to Pawan Agarwalji. Thanks the organizer to giving me an opportunity to share my views on the topic of the today, which is Code of Ethics and QRB, Quality Review. So, Kejriwal ji has made my task easy once he has briefly described the importance of Code of Ethics and Quality Review process. I think it is visible. Yeah. Chimpu screen is visible. Yes, it is visible. Okay. So, first of all, we take Code of Ethics. And this we are governed by Chartered Accountants Act 1949. Now, this Chartered Accountant Act 49 was promulgated to maintain the standards of professional competence and regulating the profession of the chartered accountants. So, this basically हम लोग किससे गवर्न होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रेगुलेशन और इसके अलावा और भी जो काउंसिल के गाइडलाइंस वगैरह वगैरह है, इन सब से जो है हम लोग गवर्न होते हैं. Now, it maintains the professional qualifications and conduct required of the members of the profession. So, earlier it was also known as code of conduct. So, it covers the conduct. बाद में इसका नाम जो ethics कर दिया जाए, code of ethics कर दिया जाए. Now, what does ethics means? Ethics means moral principle which govern a person's behavior or the conduct of an activity. So this is what ethics जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मोरल क्या है, क्योंकि things may be like that, something may be legal but it may not be ethical. Such situations may arise कि लीगल है, परमिसिबल है, लीगली परमिसिबल है, लेकिन एथिकल नहीं है. तो इस चीज को भी जो कि आपकी अंतरात्मा बोलती है जब कि नहीं यार ये ठीक है, किया तो जा सकता है, यहाँ कहीं लॉ का वायोलेशन नहीं होता है, कहीं फ्लॉट नहीं होता है, लीगली परमिसिबल है, लेकिन ये करना अच्छा नहीं है या उचित नहीं है, तो यहाँ जो है आपकी एथिक्स काम कर रही है. तो उसी तरह से एथिक्स के साथ प्रोफेशनल एथिक्स which consist of personal, organizational and corporate standards of behavior expected for the professionals. तो अब ये साथ में we are chartered accountants, we are professionals, okay, and this ethics, it is for the person, it is for our organization, and the standards and behavior which is expected of us. And mind you, ये सिर्फ हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल है ऐसी बात नहीं है. वंस यू आर ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वेदर you are in practice or not in practice, some of the provisions are applicable for the non-practicing members, some provisions are exclusively applicable to the practicing member. वो सारा हम बाद में इसे डिस्कस समय पर जरूरत हो तो करेंगे. तो अब देखिए इसका ओवरव्यू में जो प्रोफेशनल एथिक्स है, इसमें ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का 1949 है, इसके अलावा फिर काउंसिल के गाइडलाइंस है, देन देयर आर रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स. तो इसके अलावा भी गाइडलाइंस के अलावा भी देयर आर रेगुलेटेड रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स. मींस वन मेंबर हैज टू बी सेल्फ रेगुलेटेड हिमसेल्फ. अब इसके बाद क्या है कि आप जो है जो भी यू आर ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट,
अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक मिसकंडक्ट को भी एक्ट ने डिफाइन किया है। अगर आप वो मिसकंडक्ट होता है तो दैट इन मिसकंडक्ट में भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट अकॉर्डिंगली शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ये सारा जो है क्या क्या एप्लीकेबल होता है। फिर इसके बाद इसका डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर्स भी है। ठीक है। तो इसमें जो है आपकी तो मिसकंडक्ट देखिए, सब एक मिसकंडक्ट शब्द यहां पर आया है, मिसकंडक्ट। ओके। सो दिस misconduct has been defined under section 22 of our chartered accountants act। इसको जरूर हमको समझना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट shall be deemed to include any act or omission। So what it says, it includes any act or omission on the part of any member of the institute, either in his individual capacity or as a partner or as a owner of a firm as mentioned in any of the schedules। So what happens? Any of the schedules means कितने schedules है हमारी? अच्छा, चिंपू जी, आई जस्ट वांटेड, सिंस वी आर अपने कुछ ही मेंबर्स हैं, तो लेट इट बी इंटरेक्टिव सेशन। इसको कुछ भी अपने इंटरेक्टिव सेशन इसको रखें, रादर देन कि मैं बोलते जाऊं और आप खाली सुनते जाएं। तो जो भी मेंबर का कुछ कहना है या आपस में डिस्कशन करना है, तो आई थिंक इट शुड बी, उनको सबको अलाउ कर दीजिए ताकि वो भी बोल पाए, तो एक हेल्दी डिस्कशन हो। ठीक है। इसके डेफिनेशन को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, एनी एक्ट और ओमिशन। तो खाली इसमें ये नहीं है कि कोई एक्शन ही आपका मिसकंडक्ट होगा। मिसकंडक्ट मैंने जैसे बताया पहले, दो तरह के हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकता है या अदर मिसकंडक्ट भी हो सकता है। और फिर इनमें भी आपके कुछ एक्ट जो है वो मिसकंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो आपसे एक्सपेक्टेड था या जो आपको करना था उसको आपने ओमिट किया, तो वो भी मिसकंडक्ट हो जाएगी। और फिर ये जो कोई एक्ट या ओमिशन आपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया या एज ए पार्टनर किया या प्रोपराइटर हैं, तो फिर आप एज ए ओनर प्रोपराइटर के हिसाब से किया, तो ये किसी भी तरह का जो है ये करेंगे तो ये मिसकंडक्ट हो सकता है। और इसके बाद अपने इस एक्ट में कितनी शेड्यूल हैं, कोई भी मेंबर बताएंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए और चिंपू जी जरा शेयर कीजिए। कितनी शेड्यूल है प्लीज? देखिए, दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। तो ये दोनों शेड्यूल में कहीं पर भी अगर ये जो है ये बताया गया है कि भाई आपका कोई भी मिसकंडक्ट हुआ तो दोनों शेड्यूल में आ सकता है, और ये दोनों शेड्यूल में आने से आपके वहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट्स हैव बीन डिफाइंड, और उनके पनिशमेंट्स वगैरह जो हैं वो क्या है वो भी डिफाइन किए हैं। और जो फर्स्ट शेड्यूल है और सेकंड शेड्यूल, इन दोनों को डिफरेंशिएशन किया गया। इन दोनों का डिफरेंशिएशन इसलिए किया गया, ऑफेंसेस तो दोनों जगह है, लेकिन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बेसिस पे फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में इसको सेग्रीगेट किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में थोड़े से जो है कम ग्रेव है, उनके पनिशमेंट्स कम है, लेकिन सेकंड शेड्यूल में कुछ ज्यादा है। जैसे मैं पहले ही बताया कि मिसकंडक्टेड दोनों है, और इसमें जो है इन दोनों में अब आप देखेंगे कि एटलीस्ट ब्रॉडली 35 आइटम्स ऑफ मिसकंडक्ट ये इसमें कवर किए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है, फर्स्ट शेड्यूल का 4 पार्ट है जिसमें 19 आइटम्स, ठीक है, 19 आइटम्स फर्स्ट पार्ट में लिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में लिए गए हैं। और बाद बाकी के जो है सेकंड शेड्यूल में 3 पार्ट है जिसमें कि 16 आइटम लिया गया है। तो इस तरह से 35 आइटम्स आर देयर। ओके। देन हमको मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा जो एज ए मेंबर, एज ए मेंबर हमारे अब इसमें जो है ये जो टाइप्स ऑफ शेड्यूल, दो शेड्यूल और इनको जो पार्ट्स में बांटा, जो मैंने कहा कि फर्स्ट शेड्यूल हैज गॉट 4 पार्ट्स,
सेकंड शेड्यूल हैज गॉट 3 पार्ट्स। इन सब का भी क्या रैशनल क्या है, व्हाट आर द रैशनल, ठीक है, इसको भी हमको जो है समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट शेड्यूल का देखिए, जो पार्ट 1 है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, सो दिस डिस्क्राइब्स और दिस डिस्कसेस द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर इन दिस। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 या 4 तरह के हो सकते हैं ना। एक हो गए कि दोज हु आर इन प्रैक्टिस, एक हो गए दोज हु आर इन सर्विस, एक हो सकते हैं कि मेंबर जो है ना वो सर्विस में है और ना वो प्रैक्टिस में है। तो इस तरह से मेंबर हमारे हो सकते हैं। तो पार्ट 1 जो है फर्स्ट शेड्यूल का, दैट इज रिलेटेड टू मिसकंडक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। इसमें जो है कितने नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं, सो देयर आर 12 नंबर ऑफ क्लॉजेज जो कि डिस्कस किया गया है। तो लाइकवाइज पार्ट 1 में तो जो हो गया दोज हु आर इन प्रैक्टिस। नाउ कुछ जो हमारे मेंबर सर्विस में है, इंडस्ट्रीज में है, सर्विस में है, तो दोज हु आर इन सर्विस, उनके लिए पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल का एप्लीकेबल है, और वहां पर 2 क्लॉज ही हैं, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट आता है, दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, इन जनरल। तो इन जनरल का क्या मतलब हुआ कि दोज हु मे नॉट बी इन प्रैक्टिस, हु मे नॉट बी इन सर्विस, बट दे आर मेंबर्स इन जनरल। और ये प्रैक्टिसिंग के ऊपर भी लागू है और जो सर्विस में उसके ऊपर भी लागू है। माने इफ यू आर ए मेंबर देन ऑल दीज आर एप्लीकेबल टू यू। बट इसमें कितने क्लॉजेस हैं, तो इसमें 3 क्लॉजेस हैं, ठीक है। समय होगा तो इनको एक एक डिटेल में अपने बात कर लेंगे, नहीं तो उसको मैं टच अपन करके आगे चले जाऊंगा। क्योंकि जितना जो वट एवर इज द गिवन टाइम, एक एक चीज को पूरा डिस्कस करना इस गिवन टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। बात बाकी तो अगर जैसे इसको डिस्कशन करना चाहें या ये करना चाहें, तो EIRC ने, अगर मुझे सही ध्यान में है, तो इसी 18 दिसंबर को 6 घंटे का एक वर्कशॉप या सेमिनार वो पूरा EIRC ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड देन इट कैन बी डिस्कस्ड एट लेंथ देयर। अब देखिए पार्ट 4, तो ये पार्ट 3 में तो 3 तरह के आ गए, लेकिन पार्ट 4 में जो है मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट इन जनरल, यहाँ भी 2 क्लॉजेस एप्लीकेबल हैं। तो ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में व्हाट इज द डिफरेंस, कैन एनीवन टेल मी, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 और पार्ट 2 में, कैन एनीवन टेल मी। हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, ठीक है। देखिए पार्ट 3 और पार्ट 4 में बेसिकली डिफरेंस ये है कि पार्ट 3 रिलेट्स टू मेंबर्स इन जनरल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बट पार्ट 4 रिलेट्स फॉर अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। दिस इज अदर मिसकंडक्ट एंड दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये डिफरेंस है। और उसी तरह से जो है शेड्यूल 2 में जो है सिमिलरली इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। पार्ट 1 जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, यहाँ पर 10 क्लॉजेस हैं। पार्ट 2 जो है इन रिलेशन टू मेंबर्स इन जनरल, यहाँ पर और सर्विस नहीं है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन जनरल, इसके 5 क्लॉजेस हैं। और पार्ट 3 है अदर मिसकंडक्ट इन जनरल, ठीक है, ये इसके 1 क्लॉज है इसमें। इस तरह से इसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। हम्म, अब आप समझ, अब इसी को देखिए कि जैसे अगर पार्ट 1 में मैंने जैसे, हम्म, तो इसमें जो है कई तरह की जो है इंटीग्रिटी या अपने जो ऑब्जेक्टिव जो है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपना, कि भाई एक तो इंटीग्रिटी ऑफ द मेंबर्स दैट हैज टू बी मेंटेन्ड, ऑब्जेक्टिविटी है जिसको मेंटेन करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ये मेंटेन करना है हमको। तो ये सबको जो है, जो इम्पोर्टेंट हम लोगों का जो विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस मेंबर्स, तो ये हमको करना है, ठीक है ना। ये देखिए इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ये करना है। और फर्स्ट शेड्यूल तो ये तो मैंने आपसे बात की है। सेकंड शेड्यूल में जो, अब आपका जैसे कि सेकंड आप देखिए, ये जो था फर्स्ट शेड्यूल में 12 आइटम्स जो थे,
तो ये 12 आइटम्स में इस तरह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, इसमें माने ये डिटेल्स में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 12 क्लॉजेज हैं जिसको कि वी कैन गो थ्रू इट। जैसे फर्स्ट क्लॉज में है, अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपको जो है, यू विल बी deemed to be guilty of professional misconduct if any of the members who allows any other person to practice in his name, ठीक है, who is not a member। इस तरह से करके उसी तरह से क्लॉज 2 में शेयरिंग ऑफ फी विथ नॉन मेंबर्स, तो आप जो है नॉन मेंबर्स के साथ जो है फी को शेयर नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस ऑफ फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, दैट इज ऑल्सो नॉट एडमिसिबल, ठीक है। और इसमें तो एक्सेप्ट ही करना नहीं, इवन इफ यू एग्री टू एक्सेप्ट एंड यू हैव नॉट एक्सेप्टेड बट यू हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट, देन ऑल्सो इट विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने, यू आर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट जो एक नॉन मेंबर है उसके साथ में आपने सिर्फ एग्री किया कि ठीक है ये कोई काम होगा, उस काम में इतनी फी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, या तो मैं दे दूंगा या मैं ले लूंगा, ठीक है। तो अगर ये एग्री भी हुए हैं एंड इफ दैट हैज नॉट बीन डन, इवन दैट इट विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट। तो इनके इंटरप्रिटेशंस वगैरह जो है, इस तरह से हमको जो है बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है ये आगे चलता है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो सर्विस में है, उसी तरह से सर्विस वालों के लिए भी जो है उसी तरह से वहां पर दिया हुआ है कि भाई आप किस तरह से उसको ये करेंगे। अब आपका जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्लॉज 7 में भी एडवर्टीजमेंट ऑफ द अटेनमेंट, तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सॉलिसिट। तो ये जो आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते, तो ये सारा भी जो है आपका इसके लिए भी गाइडलाइन बनी हुई है। एंड नाउ दोज गाइडलाइन आर आल्सो अंडर चेंजेस, ठीक है। सो यू मस्ट हैव कम टू नो दैट आवर कोड ऑफ एथिक्स, जो कि हम ये बात कर रहे थे कि भाई 3 वॉल्यूम में है, नॉर्मली इन 3 वॉल्यूम एग्जिस्टिंग कोड ऑफ एथिक्स जो है दोज आर इन 3 वॉल्यूम्स। तो ये जो तीनों वॉल्यूम है, तो दैट इज अंडर मैसिव चेंजेस, ठीक है। तो वो जो चेंजेस है तो उसके बारे में मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखिए प्रपोज चेंजेस जो हैं, अभी तक क्या था कि हमारा जो ये था, अच्छा, हैज एनीवन प्रॉब्लम इफ आई टॉक इन हिंदी? हाँ चिंपू जी, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं हिंदी में बोलूं किसी को भी? सो नाउ व्हाट वाज देयर, आइसबा जो इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड था, उसका अभी तक जो हमारा बना हुआ था 2018 के बेसिक्स पे, ये कोड ऑफ एथिक्स का जो वॉल्यूम 1 था इसका था। बट नाउ इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ज, जो प्रपोज कोड ऑफ एथिक्स का, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ज विद द आइसबा कोड ऑफ 2024। इस एडिशन को जो है हम लोग उसका जो जो एप्लीकेबल, ये उसमें से कार्व आउट करके वट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो दैट वी आर टेकिंग। तो अब उसमें कैसे, उसमें क्या क्या चेंजेस जैसे ले रहे हैं, तो उसमें चेंजेस हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वहां जो था, वहां शब्द का प्रयोग किया था पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो जो पब्लिक अकाउंटेंट था उस शब्द को जो है हम लोग पब्लिक अकाउंटेंट नहीं रखे। what we are doing it, that was sorry, professional accountant. The word used exactly is professional accountant, but for our parlance we have made it chartered accountant instead of professional accountant। उसी तरह से professional accountant in practice, so we have adopted, we have replaced this with chartered accountant in practice, ठीक है। तो इस तरह से किए हैं। इसमें जो न्यू स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस वाले हैं, इसको भी हम लोग ले रहे हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस के जो रूल्स हैं उसको भी थोड़ा सा ट्विक किया जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के जो नेटवर्किंग गाइडलाइन है, ये नेटवर्किंग गाइडलाइन में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो अभी जो है कुछ दिन पहले, ए फ्यू डेज बैक, द इंस्टीट्यूट हैड कम आउट विद द एक्सपोजर ड्राफ्ट
and on which comments were invited up to 26th of November. Members have given their comments thereon, and the board, ethical standard board, of which I am also one of the special invitee members. So we have, for the full day, we have discussed most of the, or rather all the suggestions and interpretations, whatever were there, and those have been then, whatever was decided in the board, then we have forwarded it to the council, institute's council. And now, today is the 10th December, इंस्टीट्यूट के काउंसिल की मीटिंग आज 10 दिसंबर में चल रही है, एंड आई थिंक दोज सजेशंस और दोज ऑब्जर्वेशंस व्यूज हैव आल्सो बीन kept have been tabled in the council. अब काउंसिल उसके ऊपर जैसा जो डिसाइड करेगी, काउंसिल जैसा जो चाहेगी, उस तरह से उसके जो सजेशंस आए हैं, अकॉर्डिंगली काउंसिल विल टेक डिसीजन। और ये जो हो रहा है, तो इसमें आपका ये हो रहा है कि पहले जैसे तीन जो थे, तो तीन वॉल्यूम थे। पहला वॉल्यूम आइसबा के ऊपर में था, सेकंड वॉल्यूम मोर और लेस जो हमारा एक्ट एंड रेगुलेशन इसके ऊपर में था, और थर्ड वॉल्यूम जो था दैट वाज ऑन सम केस रेफरेंसेस, और जो हमारे जो केस लॉज वगैरह थे उसमें हुआ है। लेकिन अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि भाई फर्स्ट वॉल्यूम, एक तो लॉ बेस्ड जो है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन इसके बेसिस पे है, और सेकंड वाले को जो है हम आइसबा, मतलब अभी जो है दोनों ही चीज हो सकती। अभी जो कोड वन में था, वॉल्यूम वन था, वो या तो हो सकता है वॉल्यूम टू की तरह हो जाए, या वॉल्यूम टू जो है वो वन की तरह हो जाए। इस तरह से आपस में भी रिप्लेस हो सकता है। काउंसिल विल नाउ टेक द डिसीजन व्हाट हैज टू बी डन। बट जो वॉल्यूम थ्री था, उस वॉल्यूम थ्री में जो है ये केस लॉ का एक अलग ही रेफरेंसर एक अलग से बन जाएगा, दैट विल अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री वॉल्यूम्स, इट विल बी सेपरेट वन। और थर्ड में जो है काउंसिल्स के जो वेरियस गाइडलाइंस है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइन है, वेबसाइट की गाइडलाइंस है, फी वगैरह की गाइडलाइंस है, और भी इस तरह से कई तरह की जो गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट की अपने काउंसिल की है, दोज विल बी ब्रॉट इनटू इन थर्ड वॉल्यूम। ठीक है। अब इसके बाद जो चेंजेस, प्रपोज चेंजेस जो हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि जितने प्रपोज चेंजेस सारे के सारे मान लिए जाएंगे, या उसमें ट्विकिंग भी हो सकती है, कुछ को माना जा सकता है, कुछ को नहीं माना जा सकता है, कुछ जितने सजेशंस आए हैं उनमें से भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो नाउ दिस आर ऑल, माने फ्लूइड, सिचुएशन इज फ्लूइड। अब जैसे कि उसमें क्या था कि जो प्रपोज चेंजेस थे, तो चेंजेस में एक जैसे टर्मिनोलॉजी का, जैसे मैंने बताया ये चेंजेस हुआ। अब उसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, इसमें जो है ये दो तीन तरह की सर्विसेज को जो है और ऐड किया गया अलग से, जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन दैट हैज बीन एडेड टू दैट, रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज हैज बीन एडेड टू दैट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दैट हैज बीन एडेड टू इट, artificial intelligence, the consultancy, administrative services. So these are all items which have been inserted under the definition of management consultancy and other services. Now the thing is that कि अब इसके बाद ये चीज अलग बात है कि नाउ एक्ट जो प्रोवाइड करता है कि भाई टू योर ऑडिटी, जो आपका जो ऑडिटी क्लाइंट है, उस क्लाइंट को साइमल्टेनियसली आप जो है कुछ सर्विसेज, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, साइमल्टेनियसली आप नहीं दे सकते। तो वो ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो सारा उसमें विस्तार रूप से जो है इसके ऊपर में डिस्कशन है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड का सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया। अब ये जो है, ये एक एथिकल स्टैंडर्ड का सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, ये एक नया कंसेप्ट जो कि अभी जो अपना जो बीएसआर, सॉरी, तो ये इस कंसेप्ट को भी जो है इसमें दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वॉल्यूम। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे इट इज एड्रेसिंग टू स्पेशल क्रिटिकल रिस्क लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस, greenwashing of sustainability reporting, etc.
अब इसके साथ में नौक्लार जो है, नौक्लार का नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, इसके ऊपर में भी जो है सम चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड, दोज हैव बीन मेड। अभी तक क्या था, नौक्लार वाज ओनली एप्लीकेबल टू एंटिटीज which are listed entities having a threshold of 250 crores or more. So this was applicable to non-list, listed entities हैविंग 250 और मोर, लेकिन 250 करोड़ और मोर से नीचे जो थे उनको नो क्लार का प्रोविजन अभी तक एप्लीकेबल नहीं था। बट नाउ इट हैज बीन प्रपोज दैट दिस विल बी एप्लीकेबल irrespective of the threshold of the listed company, and this not only the listed company but all is subsidiaries। तो जो उसकी जो मेटेरियल सब्सिडरीज हैं, वॉट एवर देयर मेटेरियल सब्सिडरीज, तो ये रहेगी। अभी तक अनलिस्टेड के ऊपर तो अभी तक आया नहीं है, हो सकता है भविष्य में ये भी एप्लीकेबल हो जाए। बट देन इफ इट इज ए लिस्टेड कंपनी, देन irrespective of its turnover it will be now has been proposed that it will be applicable। तो ये हमको ध्यान रखना है, अगर हम लोग कोई भी इसकी कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड की, तो इसके ऊपर लागू पड़ जाएगा। उसी तरह से नेटवर्क, दिस इज नेटवर्थ है 250 करोड़ और मोर नेटवर्क, ठीक है ना। उस तरह से नाउ देयर इज ए प्रपोजल, अभी तक जैसे 30 ऑडिट्स था, 30 ऑडिट्स को जो है 40 तक प्रपोज करने का जो है, ये 40 कंपनीज का ऑडिट करने का अंडर कंपनीज है, ठीक है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में जो 60 था वो अभी तक 60 है, लेकिन उसमें भी जो है दो व्यू हैं। पहले तो था कि 60 पर मेंबर, एंड इफ यू आर हैविंग से 5 पार्टनर्स और 10 पार्टनर्स, इन दैट केस इवन ए मेंबर, एक एक्सप्लेनेशन पहले था कि भाई इफ यू आर हैविंग 10 पार्टनर्स एंड मान लीजिए सिर्फ एक ही पार्टनर साइन कर रहा है तो ही कैन साइन अप टू 600। लेकिन एक व्यू उसमें भी आया कि इट इज नॉट फिजिबल कि भाई एक ही पार्टनर इतना करे। अभी ये भी हो सकता है, प्रपोजल है, ये कितना एक्सेप्ट होगा कितना नहीं होगा, इट इज डिपेंडेंट। हाँ, अब रिलेटिव फी साइज जो है, इसमें रिलेटिव फी साइज, अब इसके बाद जो चेंजेस इन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, नाउ अब उसमें जो एक ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, उसके डेफिनेशन में भी हो गया है। So it will include one of those whose main function is taking deposits from the public। तो ये वाला जो सेक्शन है, तो इसके कारण से जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, क्योंकि वंस वी आर ऑडिटिंग वी हैव टू सी टू दैट कि अगर हम किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं तो उस समय उसके कई कई चीज जो है हमारी एप्लीकेबल हो जाता है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो है एक जो था इंडेटेडनेस था, तो इंडेटेडनेस में अभी तक था कि भाई अगर आप जो है आपको 1 लाख रुपीज जो है इंडेटेडनेस अगर आपकी या आपने गारंटी दी है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इट्स ऑडिटर। लेकिन उसकी लिमिट जो है, उसकी लिमिट बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख प्रपोज कीजिए। लाइकवाइज एक इसमें एक और चेंज सेक्शन 511 में किया गया है कि लोन टू ऑडिट क्लाइंट्स, अगर आपने खुद ने या आपके जो रिलेटिव्स वगैरह ने, अगर आपने उनको 5 लाख एग्रीगेट में, अगर 5 लाख है उससे ऊपर का लोन दिया, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बी ऑडिटर्स ऑफ दैट कंपनी। ऑडिटर मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिट, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। वन मोर चेंजेस जो उसमें हुआ है कि रिलेटिव का जो डेफिनेशन है, रिलेटिव के डेफिनेशन में भी चेंज किया गया है। रिलेटिव को हम लोग अभी तक क्या मानते थे, नॉर्मली इनकम टैक्स पैरेलल्स में तो हम लोग ये करते थे कि भाई आप जो रिलेटिव हैं जो कि लीनियरली असेंडेंट और डिसेंडेंट, उसके बाद स्पाउस, उसके बाद ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, तो वगैरह वगैरह करके जो हम नॉर्मल पैरेलल्स में समझते थे। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत तरह की दिक्कतें आती थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि भाई आप अगर जैसे अगर आपके रिलेटिव भी अगर कोई शेयर होल्ड उसमें करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी। तो फिर इसके बाद इसमें ये कंसेप्ट लाया गया कि भाई जो फिनेंशियल डिपेंडेंट रिलेटिव्स होंगे देन ओनली दे विल बी कंसिडर्ड। तो इसका जो रिलेटिव का भी डेफिनेशन जो है ये भी इसमें चेंज करने का प्रपोजल आया है, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। उसके बाद
आपका जो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन और पब्लिसिटी का गाइडलाइन है, उसमें भी जो है उसको भी काफी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। उसको भी जो है राइट अप के भी डेफिनेशंस को थोड़ा सा कंटेम्पररी बनाया गया है, उसको ये किया गया है। तो ये सारा जो है इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर में अवेलेबल है। उसी तरह से वेबसाइट की जो गाइडलाइन है, तो वेबसाइट की गाइडलाइन में जो पुश मेथड या पुल मेथड, आप पुश तो कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है इस कई तरह का रिलैक्सेशन देने का काम किया गया है। अभी तक जैसा होता था कि भाई आप जो है अपने फर्म का नाम, नॉर्मली मेंबर्स अपना नाम दे सकते थे, लेकिन फर्म का नाम नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नाउ दे हैव अलाउड, यस, मेंबर्स कैन गिव देयर नेम। जो एजुकेशनल वीडियोस वगैरह हैं या आपके जो राइटअप्स वगैरह हैं, उन सब में प्रिंट मीडिया में है था, या फिर आप जैसे कि टेलीविजन पे है या आप यूट्यूब पर है, तो ये कुछ तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस है, तो नाउ सम रिलैक्सेशंस हैव बीन प्रपोज्ड थ्रू आउट ऑल द मीडिया। ठीक है। वेबसाइट में भी जो है अब आप जो है सम दे हैव परमिटेड कि आप जो है क्लाइंट का नाम और जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिमेंबर आप क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट उनसे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट को आप नहीं बता सकते, बट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट को जो है आप वहां बता सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मली ये पूल बेसिस पे ही रखने का प्रपोजल है। वेबसाइट नेटवर्किंग जो फर्म्स हैं उनकी भी वेबसाइट की गाइडलाइन में जो है दिया गया है। ठीक है। नाउ एक चीज और था कि अभी तक होता था कि भाई आप जो है सेव एंड एक्सेप्ट सर्टन एरिया, जहाँ कि आप परसेंटेज पे फी जो है वो परसेंटेज बेसिस पे ले सकते थे, जैसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या इस तरह से, जहां जहां परमिसेबल कुछ ही जगह। अदरवाइज आप परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या इस पे नहीं कर सकते थे। बट नाउ देन द इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू रिलैक्स दैट इवन, एंड they are thinking of making provisions to permit quoting or accepting fees based on a percentage or range of turnover, but those will be all subject to some certain conditions। ठीक है। इसी तरह से जो है इसमें जो है दो चैप्टर और जो है प्रपोज किया गया है एथिकल इश्यूज में जोड़ने का, जैसे मिनिमम फीस। तो मिनिमम फीस का क्या था कि मिनिमम फीस 2011 तक तो लोगों के इंस्टीट्यूट ने मिनिमम फीस एक प्रेस्क्राइब की हुई थी कि मेंबर शुड नॉट एक्सेप्ट मिनिमम फीस बिलो दैट, लेकिन 2011 के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया। बट नाउ देन दे हैव डिसाइडेड इन ए मॉडिफाइड फॉर्म कि जो मिनिमम फीस जो है मेंबर्स, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसने, या मान लीजिए काउंसिल की भी कोई गाइडलाइन है, उन्होंने जो मिनिमम फीस अगर कोई प्रेस्क्राइब की है, उस मिनिमम फी के बिलो जो है मेंबर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, वो जो है ये नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इंस्टीट्यूट को भी ये परमिसेबल एक ब्लैंकेट परमिशन मिल गया। इंस्टीट्यूट किसी भी काम के लिए कैसे वो एक मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब कर सकता है। ठीक है। these आर सम proposed चेंजेस। ठीक है। उसी तरह से जो है ये और भी कई तरह के इसमें जो चेंजेस हैं। अब इसके ऊपर में जो अगर अब क्यूआरबी में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, बिकॉज अनदर इज ए अनदर टॉपिक वाज क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो आप लोग को मालूम होगा कि इंस्टीट्यूट हैज गॉट सो मेनी, हमारे जो है ये मोटा मोटी 4 या 5 बोर्ड जो है ये हमसे बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखते हैं। जैसे एक पहला तो हो गया पीयर रिव्यू बोर्ड, वी मस्ट बी नोइंग, एंड मोस्ट ऑफ जो हमारे मेंबर्स हैं दे मे हैव गॉन थ्रू पीयर रिव्यू प्रोसेस। उसके बाद एक टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी हुआ, TAQRB। इसके बाद फिनेंशियल FRRB, फिनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड एक हुआ, और इसके बाद एक हुआ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, QRB। तो QRB के बारे में जो है ये सन 2000 माने जून 2007 में ही इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। और जो आज नेफ्रा 2017 के बाद जो नेफ्रा आया है, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि नफरा 2017 में आने के बाद वो एक्टिवेट हुआ है, लेकिन जो नफरा का जो काम है वो 2007 से ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ही करता आया है। ठीक। और यहाँ 2017 में अब आ करके
फिर इन्होंने अपना अपना अलग अलग जो है एक एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मोर और लेस। जैसे कि नफरा विल लुक इनटू ऑल लिस्टेड कंपनीज, या मान लीजिए कि भाई वो बैंकिंग कंपनीज का है, या मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इस तरह की जो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटिटीज हैं, उनकी जो है ऑडिट ये रिव्यू जो करने का काम वो नफरा करेगी। और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो हो गया, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जिसका नफरा भी करेगी, उनका नॉर्मली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल नॉट डू इट। एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो करेगी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट पे ही करेगी, ठीक है। अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट पे नहीं होगी, जैसे टैक्स ऑडिट के ऊपर में क्वालिटी रिव्यू नहीं होगी। अब ये क्वालिटी रिव्यू का क्या प्रोसेस है? तो क्वालिटी रिव्यू मेनली क्या है कि इट हैज टू इंश्योर दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स, कि भाई आप जो वहां जब ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करने में यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी। एंड क्वालिटी ऑफ व्हाट? क्वालिटी आपको जो है आपका जितना वहां पर जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, तो सारा जितना जो मतलब जितना एक्ट के कंपनी जो भी रिलेवेंट एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है जो एप्लीकेबल हैं, उन सब का जो ऑडिट करते वक्त आप जो है उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं, सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं। ये इसमें जो है जो सब्सटेंशियल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, तो दोनों को ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल लॉ को गो बाई दे देते। तो ये जो है प्रोसीजरल सब्सटेंटिव लॉ, इसको भी पूरी तरह से देखा जाता है। अब इसमें बेसिकली जब क्वालिटी, अगर आपका मान लीजिए किसी का भी क्वालिटी रिव्यू हुआ हो, तो दे मस्ट हैव सीन दैट इसमें क्या है कि इसमें 5-6 स्टेजेस हैं। स्टेजेस इन द सेंस करीब करीब 450 और 51 के करीब करीब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन सब के क्वेश्चंस को जो है बड़ा मेथोडिकली यू हैव टू रिप्लाई, क्योंकि इसमें जो है आपका जो रिव्यूअर होगा, क्योंकि ये जो क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में ये 3 लेग है। जैसे फर्स्ट हो गया क्वालिटी रिव्यूअर, उसके बाद हो गया कि क्वालिटी रिव्यू ग्रुप एक होता है, और उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो जो आपका रिव्यूअर होगा, रिव्यू जा करके वो जो AFUR जिसको बोलते हैं, जो फंड है अंडर रिव्यू, ऑडिट फॉर अंडर रिव्यू, AFUR, उनके जा करके वहां पर जो है ऑन साइट ऑफ साइट दोनों ही वो ऑडिट करते हैं। ऑन साइट के लिए उनको मैक्सिमम नॉर्मली 7 डेज का टाइम दिया जाता है मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर होता है तो बोर्ड का परमिशन लेके स्पेशल केस में करना पड़ता है। देन दे सबमिट देयर रिपोर्ट। इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद उनका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का उनका जवाब आता है, फिर उसके बाद जो है फिर आप अपना रिजोइंडर वापस देते हैं। तो इस तरह से करके इसका एक पूरा प्रोसेस है। नाउ दैट योर रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो जा करके आपकी जाती है, वो जो है नाउ दैट इट इज वेटेड बाय द ग्रुप। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप जो होता है, वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इसको देखता है, और फिर वो उसके ऊपर में अपनी रिपोर्ट सबमिट, अपने व्यूज को वो अपनी रिव्यू देता है कि भाई व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, वेदर दे एग्री, और व्हाट आर द व्हाट देयर रिमार्क on the report made by the reviewer, and then it goes to the quality review board, and then it is being discussed। फिर उसके बाद उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है लिया जाता है। समटाइम्स अगर नॉन कंप्लायंसेस बेसी है या नॉन कंप्लायंसेस की ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करने से, तो द मैटर कैन आल्सो बी रेफर टू द डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए क्वालिटी रिव्यू जो है, इसमें अभी इंडिया में मोरलेस लगभग 107 से 110 एज ऑफ जनवरी 25 आउट ऑफ मान लीजिए 1.5 या 2.25 लाख जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं, उनमें से अभी करीब करीब 107 से 110 मेंबर्स होंगे अक्रॉस ऑल अक्रॉस इंडिया। और इसमें जो होता है, जैसे अपने जो 5 रीजन है, तो 5 रीजन में से जब भी क्वालिटी रिव्यू होती है, तो क्वालिटी रिव्यू सेम रीजन से जो रिव्यूअर नहीं आएगा, आपका दूसरा रीजन से आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ईस्टर्न रीजन में किसी की क्वालिटी रिव्यू हो रही है, तो जो रिव्यूअर आएंगे वो रिव्यूअर ईस्टर्न रीजन से नहीं आकर के बाकी चारों रीजन में किसी भी रीजन से आ सकते हैं। इसके बाद में जो है इसमें क्वालिटी रिव्यू में माने सारे एंगल मैंने SQC का एंगल देखा जाता है। उसके बाद में आपका जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का देखा जाता है। तो इस तरह से करके काफी कुछ आ, उसमें देखा जाता है। अब इसमें जो है
क्वालिटी का मैंने रिव्यू का इसका स्कोप ही होता है कि वेदर स्टैट्यूटरी है ऑडिटर है इंश्योर्ड कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड अदर एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स अंडर द रिलेवेंट गाइडलाइंस। तो ये है कि नहीं, whether the statutory auditor has ensured compliance with relevant laws and regulations as required under applicable accounting standards। तो मैंने जो ऑडिटर जो ये मैंने जो बताया 450 से 51 क्वेश्चंस एज एप्लीकेबल्स, उसके ऊपर में जो है वो सारे इसका पार्ट बाई पार्ट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली दिस इज डन फॉर एनी, माने दे डू सिलेक्ट एनी कंपनी विच हैज द एएफयूआर हैज ऑडिटेड, ठीक है। उसके बेसिस पे वो किसी भी एक एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके मेनली उसकी ऑडिट के बेस के ऊपर में जो है वो अपनी रिपोर्ट क्वेश्चंस देते हैं, उसके बेस के ऊपर में उनको अपना रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। और अब उसके बाद में उसमें सिर्फ उसी को बेस नहीं करते हैं, ये देखिए इस तरह से दिस आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से ये जो है क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें एसक्यूसी से रिलेटेड है, तो एसक्यूसी से रिलेटेड करीब करीब 74 क्वेश्चंस आते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर में करीब करीब 153 क्वेश्चन आ जाते हैं। एएस या एनडीएस जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर में, तो उसके उस एंटिटी पे जो एप्लीकेबल था जो आपने ऑडिट की है, तो उस पे 32 या 36 38 क्वेश्चन करीब आते हैं। अगर एएस है तो 32 करीब, और एनडीएस है तो 38 है। कारों के करीब करीब आपके 24-25 जो है क्वेश्चन वो आते हैं। सॉरी, करीब 21 कारों के जो 21 क्लॉजेस है प्लस एक क्लॉज और जो होता है, तो ऐसे 22 क्वेश्चन। शेड्यूल 3 जो है आपका डिवीजन 1 या डिवीजन 2 जैसे भी एप्लीकेबल है, तो उसमें जो है 60 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। मिसलेनियस भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या है कि ये सारे जो है आपको ये देना पड़ता है। एफयूआर अपना रेस्पॉन्स देता है, फिर एफयूआर रेस्पॉन्स इनिशियली जो है ये क्वेश्चनर का जो है आंसर रेस्पॉन्स जो है ये एफयूआर देता है। अब क्या है कि इसके पहले तक तो ये और ऑफलाइन चलता था, लेकिन फॉर लास्ट 1 ईयर और लाइक दैट इट हैज बीन मेड ऑनलाइन। अब इसके जो पोर्टल पे ही सुविधा हो गई, और पोर्टल में ही जो है आपको इसके एएफयूआर आंसर्स अपलोड करता है, वहीं से टेक्निकल रिव्यूअर उसको डाउनलोड करके उनका जो रेस्पॉन्स है उसके ऊपर में फिर वो अपना कमेंट देता है। वो कमेंट देने के बाद में फिर वापस जो है एएफयूआर के पास जाता है, वो उसके ऊपर फिर अपना कमेंट देता है, और उस कमेंट देने के बाद में फिर उसमें से टेक्निकल रिव्यूअर अगर उसमें से कोई पॉइंट ड्रॉप करना चाहता है तो ड्रॉप करता है, अदरवाइज दे करके वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। सो लाइक वाइज दैट कि यहाँ पर ये लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो क्वेश्चनर हैं, ये क्वेश्चनर ऐसे सिर्फ यस नो ऑल राइट ये लिखने से नहीं चलेगा। इसको जो है क्वेश्चंस के जो आंसर है या रेस्पॉन्सेज हैं उनको बड़े तरीके से समझ करके और एलाबोरेटली देना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन काफी फ्रेम किए गए हैं जो कि मान लीजिए आपने एक जगह उसको यस नो या एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल किया, लेकिन हो सकता है उसके 3-4 क्वेश्चन के नीचे जस्ट उसी चीज को किसी दूसरी तरह से लिखा जाएगा, और उन दोनों का आंसर जो आपस में मैच करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप इसमें जो है काफी कुछ फोकस डाला जाता है कि भाई वेदर द ऑडिटर हैज प्रॉपरली आइडेंटिफाइड द रिस्क, मतलब ये रिस्क बेस्ड भी है। और इसमें उस सिर्फ उस एंटिटी के ऑडिट को लेके नहीं है, इसके बाद इसमें ये भी देखा जाता है कि भाई ओवरऑल जो है आपका जो फर्म एएफयूआर जो है उसकी ऑडिट करने की क्वालिटी क्या है। वो मान लीजिए कि जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द एएफयूआर वेदर दे आर अपडेट और नॉट, वो जो है जो जो भी एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस ये हैं, ये सारे कर रहे हैं। इस तरह से यही है। और चूंकि समय अब नहीं है, तो इसलिए अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो काइंडली। और इसके बाद ये सारा जो है आपको इसका मटेरियल जो कोड ऑफ एथिक्स के भी काफी कुछ मटेरियल इंस्टीट्यूट की साइट पे जो है वहां पर अवेलेबल है। इसके बाद इनका जो है आपका जो क्यूआरबी का भी जो है इसके एफआरआरबी की साइट पे क्यूआरबी की साइट पे अवेलेबल है। एंड ये जो है एनुअली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो एनुअली अपनी रिपोर्ट भी बना के देती है। उसमें जो कंप्लायंस नेचर ऑफ कंप्लायंसेस किस तरह के नॉन कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं ये सारे भी बना के देते हो। तो ये अगर जो है जो भी मेंबर्स
अगर इसको देखें तो हम लोग अपनी खुद की क्वालिटी को भी जो है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझ सकते हैं, खुद की क्वालिटी को भी जो है हम लोग अपना ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सो गिवन द टाइम व्हाट आई कुड समराइज इट, और अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी ग्लैड टू, ओवर टू रोहित जी। Thank you, Pawan ji, for such a nice deliberation on Code of Ethics and QRB. I request to participants if they have any question, then write in chat box. Pawan ji will give the answers. Otherwise, we will close the sessions. I think Pawan ji कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसका तो मतलब थैंक ये यू। है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। Just giving a vote of thanks to Pawan ji. I am confident that today's session will deepen our understanding and reinforce our commitment of ethical and quality-driven practice. I extend my best wishes to our distinguished speaker, CA Pawan Kumar Agrawal ji, and I encourage everyone to actively participate and take away valuable insights. Thank you, and look forward to an enriching discussion ahead. Thank you, Pawan ji, once again. थैंक यू। I hand over to EIRC. If organizing team is here, please end the sessions.